Hello everyone, welcome to a brand new episode of Vision CA Career Talks. I am CA Harshada Bhujbal, a fellow mentor of Vision CA and your host for today. Today we have with us CA Preetham Mahure, a GST practitioner for more than 15 years now, author of several books on GST and indirect taxes, and he conducts several webinars and seminars on GST and indirect taxes as well. So hi Preetham sir, it is our pleasure having Yes. you here on this show. Welcome to our channel. So first, I would like to start with your formative years, where you had your schooling, where you did your college, and how was your childhood, where you were born and brought up. Please tell us something about that. Okay. Hi, Archana. Thanks, Team Vision CA, for inviting us and giving us this wonderful opportunity to interact with the participants. So it goes back to my schooling days. My dad used to work in the police department. He was in CID. That time we used to stay in Pusad, that is which happens to be in Vidarbha side of Maharashtra. So there only I had a schooling. Unfortunately, when I was, I think in 7th to 8th standard, that time my dad expired. And because of that, we had to move to my mother's hometown, that is Parvani, because our mama and all, everybody was in that city. So we had some helping hands around. So we shifted to Parvani. Then in Parvani, I had my schooling in Gandhi Vidyalaya and subsequently in Shivaji College up to 12th. And it was completely in Marathi medium. It was a Marathi medium education, vernacular language मध्ये झालं होतं. And after that, I moved to Pune to pursue my CA degree or CA course. So I understand that you come from Parbhani, which is a district in Maharashtra, and Yes. with no such background as such for chartered accountancy. So with such background, when did you realize or when did you choose that you want to pursue your career in chartered accountancy, and why? Okay. So I think when I cleared my 10th standard exam, that time I had a 62 or some odd percentage, just barely crossing the first class percentage. And that too, obviously it is in today's age or today's era, it is nothing. Like say people have 95, 98 percentage and still they are struggling. So it was just 62%. So one thing was very clear that I won't be able to, or I was not that bright student to pursue science. But at the same time, many people say what you are going to do when you are going to pursue art as a stream. That was another question mark. So I thought, let us choose in between, that is commerce field. And I joined 11th commerce. During when I passed my 10th exam, there were a couple of people in my family as well as some of the people who we knew. So they were very helping and they told me that do chartered accountancy course. It's one of the most respected course in India. And I think because of their guidance and their blessing only, I was able to take that decision. Okay, let's do commerce. And then maybe after 12th, if I do well, then I will pursue CA course. That's how this journey happened. Per se, and I would say, see, right now, when I look at your generation versus our generation, because I belong to a generation who cleared 12th in 1999. So it is around 22 years back, correct? So Yes, that time there I was was that not time. much option available. So Yes. right now, all of you are having so many options available and there is abundance of opportunities. So sometimes lack of opportunities will lead you to the right destination because कम रास्ते हैं, तीन ही रास्ते हैं तो आपको choose करना है. But right now there are so many roads, so people get freezed to what to choose and what not to do. And because there is a potential between now all the people, and because this online platform, it has given us an opportunity to do everything. Most of the people, because they want to do everything, they are not able to do anything. That's also a contrast, I would say. So sometimes that lack of opportunities or lack of option was rather a blessing for our generation. But now I would say abundance of opportunity, abundance of option is proving to, I think, not a, I would say, working out to be in a positive manner for many of the students. Yes, yes, that is pretty much true. And let's come to your CA journey. I personally believe that everyone's CA journey is very unique and very special. So we would like to listen to you about your CA journey, right from CA CPT to CA final. तो मैं तो कहूंगा कि मेरा सीए जर्नी बहुत ही इवेंटफुल था पर से बहुत ही एक्साइटिंग था जब मैं यहाँ पर पुणे में आया था फर्स्ट टाइम हम अपने पुणे इंस्टीट्यूट के ऑफिस में गया था तो फर्स्ट टाइम मेरे लाइफ में मैंने लिफ्ट देखा था
किसी तो लिफ्ट में हम एक दो बार, यानी कि फोर्थ फ्लोर में ऑफिस था तो एक दो बार लिफ्ट में अप डाउन किए थे, बिकॉज लाइफ में तब तक हमने लिफ्ट भी नहीं देखा था. सो तो फाउंडेशन के लिए रजिस्ट्रेशन लिया, एंड ऑब्वियसली ऑल ऑफ अस वर मोर देन एक्साइटेड टू परस्यू सीए कोर्स. मराठवाड़ा एमएमसीसी करके एक हॉस्टल है, वहां पर एडमिशन लिया, एमएमसीसी कॉलेज में एडमिशन लिया, एंड आई स्टार्टेड माय जर्नी. फाउंडेशन में मुझे 2 अटेम्प्ट लगे, इंटर में 3 अटेम्प्ट लगे, और फाइनल में 3 अटेम्प्ट लगे. तो काफी सारे जो ब्राइट स्टूडेंट रहते हैं वो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर हो जाते हैं एग्जाम. तो उनके कंपैरिजन में नेचुरली लगता है कि अरे 2 अटेम्प्ट, 3 अटेम्प्ट और 3 अटेम्प्ट, यानी कि 8 अटेम्प्ट लगे एज कम्पेयर टू 3 अटेम्प्ट, यानी कि 1 सिंगल शॉट को क्लियर करेगा. तो सो यस, ज्यादा टाइम लगा, 4 साल की जगह 6 साल लगा. बट आई एम वेरी थैंकफुल फॉर द इंस्टीट्यूट फॉर फेलिंग मी. बिकॉज अगर मुझे लगता है अगर मैं उस एग्जाम में अगर फेल नहीं होता, तो आज जो लाइफ में कहीं ना कहीं एज अ पर्सन आई एम अ बिट रेजिलियंट आप कह सकते हो, या अ बिट इतना सक्सेस भी अगर टेस्ट किया है तो आई डोंट गो ओवर द बोर्ड. फेलियर भी मुझे पुश डाउन नहीं कर सकता है. तो कहीं ना कहीं आई थिंक द क्रेडिट गोज टू द ICAI. Because they failed me, I was able to test the failure, understand the failure, and then overcome that failure. So that's how that journey was. And I would like to say here that this is your positive approach, that you look at your failure as a chance to get back to it. But there are some students, or there are some people who are dodged back by the failure. So how can you please guide us from your challenges that you faced during your journey, and how did you overcome them? अच्छा, तो एवरी टाइम आई यूज्ड टू फेल. ऑब्वियसली एक दो चीजें जो है, काफी सारे लोग का ये बेसिक अपना मन धारणा है कि बॉयज डोंट क्राई. तो मैं तो उसमें बिल्कुल बिलीव नहीं करता हूँ. तो जब मैं फेल होता था, मैं मन भर के रोता था 2-3 दिन सोलेस में. उन्हें क्या कहते हैं, शावर वगैरह लगा के रोना, वैसा सॉर्ट ऑफ. तो मैं बिल्कुल रोता था 2-3 दिन. मैं खुद सोलेस में रहता था. फैमिली वगैरह को, मॉम से वगैरह बात करता था. मॉम भी कहते थे ठीक है ना, नेक्स्ट अटेम्प्ट है ना अपने पास, सॉर्ट ऑफ. तो एवरी टाइम मॉम वगैरह से बात करता था तो मॉम थोड़ा पॉजिटिव बता देती है, और 2-3 दिन थोड़ा खुद को टाइम देने का उस टाइम में. लेकिन जो अपना क्राई है, ऑलवेज में मेरे माइंड में वही रहता था. 2-3 दिन मन भर के रोने का, 2-3 दिन सोलेस में रहने का. देन वी हैव टू कन्वर्ट दिस क्राई इनटू अ वॉर क्राई. बिकॉज नेक्स्ट अटेम्प्ट है ना, मई के बाद नवंबर है, नवंबर के बाद मई है ना. सो यू हैव टू क्रॉस दैट जर्नी, यू हैव टू गो थ्रू दैट पेन. बिकॉज द मोर एंड मोर you understand this basic fact that failure is not the end of the journey, it is just part and parcel of the journey. अगर मुझे पूना से अगर मुझे मुंबई जाना है तो लोनावाला बीच में आने वाला है. अगर समझो बस वहां पर 1-2 घंटा रुक गया, कुछ लैंडस्लाइड हो गया है, कुछ पंक्चर हो गया, जो भी रहेगा XYZ रीजन, बट बस पहुंचेगा ना, 2 घंटा लेट पहुंचेगा, नेक्स्ट डे पहुंचेगा. नहीं पहुंचा तो मैं चल के जाऊंगा, ट्रेन से जाऊंगा. सो देयर वुड बी एन नंबर ऑफ ऑप्शन विच वुड बी अवेलेबल. सो वी हैव टू बी जस्ट वेरी मच क्लियर कि मेरा डेस्टिनेशन क्या है. तो डेस्टिनेशन के बीच में फिर जो भी कोई हिंड्रेंस आ रहा है, कुछ भी प्रॉब्लम आ रहा है, आई थिंक वी शुड टेक इट विद अ स्माइलिंग फेस, एंड वी शुड ऑलवेज थिंक अबाउट ओके ठीक है, फेल हो गए, नेक्स्ट व्हाट, फेल हो गए, नेक्स्ट व्हाट. यानी कि थॉट प्रोसेस शुड बी फेल्यूर हैज हैपन, उसको तो चेंज नहीं कर सकते. यू ऑलवेज हैव टू थिंक व्हाट्स नेक्स्ट. बिकॉज ये कहीं पर मैंने बहुत ब्यूटीफुल कोट पढ़ा था, इफ यू आर thinking what you should have done, then you are thinking like a loser. But if you are thinking what you should do, then you are thinking like a winner. तो मैं जब भी फेल होता था, और जब मैं सोचता था, बहुत बार अपने माइंड में आता है ना, अरे मैंने RTP किया रहता तो अच्छा था, मैंने शायद कोई कोचिंग क्लास किया रहता तो अच्छा था, मैंने इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल 2 बार पढ़ना चाहिए था, मैंने एग्जाम की कपल ऑफ पास पेपर सॉल्व करने चाहिए था. तो ये जैसा ही थॉट आता था मेरे माइंड में फेल होने के बाद, तो मैं कहता था आई एम थिंकिंग लाइक अ लूजर. बिकॉज लूजर्स विल ऑलवेज थिंक व्हाट दे शुड हैव डन, बट विनर्स विल ऑलवेज थिंक व्हाट दे शुड डू. तो मैं इमीडिएटली बोलता था अच्छा ये नहीं किया ना, अभी कर सकता हूँ ना मैं. तो आई यूज्ड टू नोट इट डाउन एंड देन आई यूज्ड टू डू इट. दैट्स हाउ वी हैव टू थिंक. फेल तो होना ही है, प्लस और एक चैलेंज आ जाता है. बहुत बार जब फेल होते हैं तो माइंड में कैसा रहता है कि समझो मैं सेकंड ग्रुप में फेल हो गया. सेकंड ग्रुप में कॉस्टिंग का पेपर है, अकाउंट्स का पेपर है, सॉरी कॉस्टिंग का पेपर है, टैक्स का पेपर है. तो मैं टैक्स के बारे में जब पढ़ रहा हूँ तो मुझे कॉस्टिंग के बारे में टेंशन होने लग जाता था. कॉस्टिंग के बारे में पढ़ रहा हूँ तो टैक्स के बारे में हो रहा था. सो व्हाट आई यूज्ड टू डू, जब भी मैं कोई सब्जेक्ट के बारे में पढ़ रहा हूँ, आई ऑलवेज यूज्ड टू हैव अ लास्ट पेज व्हिच इज डेडिकेटेड टू अदर सब्जेक्ट्स. तो जहां पर ही टेंशन आता था मैं वहां लिखता था अच्छा मुझे ये समझो ये XYZ टॉपिक के बारे में पढ़ना है बाद में. तो जब मैं वो टॉपिक पढ़ूंगा नेक्स्ट डे या शाम में, तो उस टाइम पे मैं उस पर जाकर रीड करता था. सो आई थिंक दीज आर द काइंड ऑफ मेथोडोलॉजी, स्ट्रेटेजीज यू नीड टू डिवाइस. फेल होना ही है,
देयर वुड बी सम ब्राइट स्टूडेंट जो थ्रू आउट फर्स्ट अटेम्प्ट क्लियर हो जाएंगे, बट जरूरी नहीं है कि वो लाइफ में भी फर्स्ट अटेम्प्ट रहेंगे हर चीज में, बराबर है। तो आपने अगर फेल्योर टेस्ट कर लिया, आई थिंक यू आर हैविंग एज ओवर अदर्स, बिकॉज यू आर लाइकली टू बिकम रेजिलियंट एज कंपेयर टू अदर्स। मैं ये नहीं कहूंगा कि इसकी वजह से आपको फेल होना ही चाहिए, यू शुड नॉट, बट अगर फेल हुए तो टेक इट इन अ पॉजिटिव सेंस, टेक इट इन अ पॉजिटिव मैनर, ट्राई टू टेक इट to your I would say as a add to your life as an experience rather than a baggage per se. So as they always say, the show must go on, and we have to proceed with our life. So I read somewhere that you had specifically failed in indirect taxes once. So and you are a prominent GST practitioner right now. So how did that experience help you? How did you overcome your indirect tax failure? अच्छा, तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग मेरा ये लाइफ का एक आई वुड से डायमेंशन है कि 2004 मई में थ्रू आउट, यानी कि मैं फाउंडेशन में जब फेल हुआ तभी भी मैं एग्रीगेट में फेल हुआ था, कोई टॉपिक में कभी फेल नहीं हुआ। इंटर में भी जब मैं फेल हुआ तभी भी एग्रीगेट में, फाइनल में भी जितने भी मुझे अटेम्प्ट लगे हैं हर बार मैं एग्रीगेट में फेल हुआ था। टॉपिक में मैं सिर्फ फर्स्ट टाइम मई 2004 में मेरी लाइफ में, मेरे एंटायर लाइफ के एजुकेशनल रिकॉर्ड में सिर्फ एक ही टॉपिक में फेल हुआ, दैट इज इनडायरेक्ट टैक्स में 2004 में, एंड वो 40 मार्क्स मुझे कुछ तो भी आए थे, 30 मार्क्स आए थे एज कम्पेयर टू 40। तो वो जो सेटबैक था वो इतना ज्यादा डीप उसने मुझे इम्पैक्ट किया कि अरे हाउ कैन आई फेल, बिकॉज मैं तब तक एग्रीगेट में फेल होता था ना। आई ऑलवेज यूज्ड टू टेल माय स्टूडेंट कि ठीक है, मैं फ्रेंड्स कि यार मैं 10-15 मार्क्स थोड़ा बढ़ा लेगा, थोड़ा पढ़ाई कर लेगा तो पास हो जाएगा, लेकिन इस बार मैं टॉपिक में फेल हुआ था तो मुझे बहुत बुरा लगा, एंड दैट्स वेयर आई स्टार्टेड टू रीड दैट टॉपिक मोर ऑफन। तो मैंने कहा कि अच्छा ये टॉपिक मुझे, बिकॉज मैं जब पढ़ता था इनडायरेक्ट टैक्स मुझे फ्रस्ट्रेट कर देता था टॉपिक, तो मैंने चैलेंज किया, मैंने कहा कि अगर ये टॉपिक मुझे फ्रस्ट्रेट कर रहा है, मैं अभी इसको इतना पढ़ूंगा कि ये टॉपिक खुद फ्रस्ट्रेट हो जाएगा मुझसे, सॉर्ट ऑफ। तो उस टाइप का एटीट्यूड से मैंने पढ़ाई किया, चालू किया, एंड देन इवेंचुअली बिकॉज आई वॉज रीडिंग द टॉपिक सो मच, मैंने 3-4 बुक्स अलग अलग ऑथर्स के परचेज किए, अलग अलग ऑथर से पढ़ा, एंड देन नेचुरली आई फेल इन लव विद द टॉपिक सेम टॉपिक विच आई यूज्ड टू हेट। जब मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट बना उसके बाद मैंने इनकम टैक्स में, बिकॉज मेरे कपल ऑफ फ्रेंड्स इनकम टैक्स में काम करते थे, तो मैंने भी इनकम टैक्स के जॉब ज्वाइन कर लिया इनकम टैक्स फील्ड में। बट इवेंचुअली आई रियलाइज माई लव इज इनडायरेक्ट टैक्सेस। सो 1 साल बाद मैंने करियर स्विच किया, एंड दैट्स वेयर आई वुड से कि जो एग्जाम का जो सबसे मेरा जो बिगेस्ट फेल्यूर था वो मुझे बाद में रियलाइज हुआ कि वो मेरा सबसे बड़ा अचीवमेंट था, बिकॉज वही फेल्यूर ने मुझे बताया कि मेरा सबसे बड़ा वीकनेस क्या है। See, right now we are living in a social media dominated world जहां पर सिर्फ लाइक बटन आता है। एग्जाम एक ही जगह है जहां पर आपको अनलाइक किया जा रहा है, एंड वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज वो जब अनलाइक करते तो आपको पता चलता है अच्छा यार ये मेरा वीकनेस है, यहाँ पर मुझे थोड़ा स्ट्रेंथनिंग करना पड़ेगा। अदरवाइज लाइफ में तो आजकल कोई बताता ही नहीं है, इवन मुझे लगता है रिलेटिव, भाई बहन, मॉम डैड तक बताते नहीं है आजकल, बिकॉज एवरीवेयर यू आर जस्ट गेटिंग लाइक्ड। करेक्ट, सोशल मीडिया पे भी बताना चाहिए। तो एग्जाम ही एक लोकेशन बचा है जहां पर क्लियरली कम्युनिकेट होता है, अगर वीक है तो वीक है, स्ट्रांग है तो स्ट्रांग है। सो दैट्स वेयर आई थिंक यू शुड ड्रॉ अ पैरेलल एंड अंडरस्टैंड कि एग्जाम में अगर आपको कोई बता रहा है वीक है तो वर्क ऑन दैट टॉपिक एंड यू हैव अ पोटेंशियल टू बिकम एन एक्सपर्ट इन दैट टॉपिक इवेंचुअली ओवर पीरियड ऑफ टाइम। So this failure only made me an expert, rather I would say pushed me to that journey of becoming an expert. And even right now also I am trying to be on that path. You have put it. So thankful. Yes. And that's where I always say we need to thank our failures. We should thank our failures and we should be grateful to them. बिकॉज कहीं ना कहीं वो लाइफ में आगे जाके इतने मैटर करते हैं ना, आपको आज रियलाइज नहीं होगा, आज आपको बहुत बुरा लगेगा, और आप आज आपको लगेगा अच्छा अभी बहुत सक्सेसफुल हो गए तो ये बात कर रहे हैं कि अच्छा फेल होना चाहिए या फेल में से सक्सेसफुली आपने कुछ गैदर करना चाहिए। बट इवेंचुअली आप भी जब 10-15 साल में आगे बढ़ जाओगे लाइफ में, करियर में, आपको भी यही रियलाइज होने वाला है। सो इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। यस, टाइम हील्स एवरीथिंग। Yes. So, if I'm not wrong, you were into teaching also for some time, right? So, we would like to listen to more about that also. अच्छा, वंडरफुल। तो हर्षद, जब मैं सीए बना, चार्टर्ड अकाउंटेंट बना, एंड मुझे लगता है कि हर प्रोफेशनल उस जर्नी से जाता है। जब हम चार्टर्ड अकाउंटेंट बनते हैं ना तो पहले लगता है कि अरे हमारे पीछे पूरी दुनिया लाइन में लग जाएंगी, लेकिन बाद में पता नहीं हम खुद लाइन में कब लग जाते हैं, पता ही नहीं चलता है।
बिकॉज देर आर सो मेनी प्रोफेशनल्स आउट देयर, करेक्ट. सो आपको लगता है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना एक एंड है, बट ये एंड नहीं, ये तो स्टार्टअप जर्नी है. वहां से आपको रियली आपका प्रोफेशनल जर्नी चालू हो जाता है, बिकॉज यू आर कॉम्पिटिंग विद द बेस्ट ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड. तो जब मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट बना तो मुझे पहले लगा डायरेक्ट टैक्स में करना चाहिए, फिर 1 साल के बाद मुझे लगा इनडायरेक्ट टैक्स में करना चाहिए, फिर मुझे लगा अच्छा इनडायरेक्ट टैक्स में अभी अच्छा समझता हूँ तो मैं अच्छा समझा भी पाऊंगा. तो फिर मैंने 1-2 साल इनडायरेक्ट टैक्स में टीचिंग या कोचिंग भी किया. 2-3 साल जब मैंने टीचिंग कोचिंग किया, देन आई रियलाइज अच्छा मैं पढ़ा रहा हूँ लेकिन व्हाट अबाउट माय लर्निंग, बिकॉज मुझे प्रैक्टिकली इनडायरेक्ट टैक्स के जब बच्चे लोग क्वेश्चन पूछते थे मुझे इतना नहीं आता था, बिकॉज मैं थियोरेटिकल बताता था, बिकॉज टीचिंग कर रहा हूँ ना, इतना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है नहीं ग्राउंड लेवल का कि लॉ को किस तरह से इंप्लीमेंट किया जाता है, किस तरह से ऑफिसर को आप सामने जाके कंटेंशन पुट करते हो, सबमिशन करते हो. तो मुझे लगा यार बहुत बड़ा वैक्यूम हो रहा है, दैट आई एम टीचिंग द स्टूडेंट बट व्हाट अबाउट माय लर्निंग, एंड इट्स इनडायरेक्ट टैक्स इज अ प्रैक्टिकल टॉपिक. इसमें बहुत आपको प्रैक्टिकल चीजें आती है, बट इट्स अ ट्रांजेक्शन लेवल टैक्स. So then I realized, no, I need to also get a hands-on experience, practical experience. So I moved from Pune to Bombay to get a hands-on experience, and then I quit teaching. बट ये मुझे लगता है कि बहुत बेस्ट पार्ट रहा मेरे लाइफ का कि मैंने पहले डायरेक्ट टैक्स में से स्विच किया टीचिंग में, टीचिंग से स्विच किया मैंने जॉब में, एंड फिर जॉब से मैंने स्विच किया प्रैक्टिस में. तो काफी सारे लोगों को लगता है मैंने जब चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाऊंगा तभी मुझे क्लियर हो जाना चाहिए मुझे लाइफ में क्या करना है. डोंट वरी, वो इवेंचुअली क्लियर होता है. आपका जो भी पैशन वगैरह हम वर्ड कहते हैं ना, यू हैव टू गो थ्रू दैट पेन, बिकॉज मैंने आई डोंट रिकॉल बट कहीं पर पढ़ा था कि इवन पैशन यानी पैटी एंड वो जो वर्ड है इट्स पेन. तो पेन के थ्रू जब आप गुजरते हो देन आपको पता है अच्छा यार दिस इज वेयर आई वांट टू गो, दिस इज व्हाट द जर्नी आई वुड लव टू हैव. तो मुझे लगता है सेम आप भी गो थ्रू करोगे. सो डोंट हैव अ विजन और अंडरस्टैंडिंग कि नहीं डे वन से मुझे पता होना चाहिए मुझे डायरेक्ट टैक्स में करना है, इनडायरेक्ट टैक्स में करना है, वैल्यूएशन में करना है, मर्जर एक्विजिशन में करना है. नथिंग लाइक दैट. जस्ट एंजॉय द जर्नी, जस्ट बी पार्ट ऑफ द जर्नी, दैट्स इट. बट यस आपको एफर्ट और कमिटमेंट रहने चाहिए. जब डायरेक्ट टैक्स में मैंने काम किया मैं रात के 2-3 बजे तक काम करता था, अर्ली मॉर्निंग उठ के मैं रीड भी करता था. जब मैंने टीचिंग करता था तब भी मैं उतना ही पैशनेट था टीचिंग के बारे में. जब मैंने इनडायरेक्ट टैक्स में जब लर्निंग चालू किया तो आज भी एवरीडे आई रीड फॉर एटलीस्ट 1 or 2 hours. तो मुझे लगता है कि ये तो आपको सिर्फ कमिटेड अगर आप रहोगे कोई भी फील्ड में तो नेचुरली इवेंचुअली विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि मुझे किस में काम करना है. लेकिन जस्ट बी कमिटेड इन दैट व्हेन यू आर इन दैट प्रोसेस और व्हेन यू आर इन दैट पर्टिकुलर जर्नी. Right. So when you moved to Bombay for job, so you did job for several years and then you started your own practice. So how was that transition? When was the actual point when you realized that this is the point I should start my own practice? अच्छा, तो जॉब का भी जर्नी मुझे लगता है काफी इवेंटफुल था, बिकॉज जॉब में भी मैं एक बार फेल हो चुका हूँ. लोग एग्जाम में फेल होते, मैं जॉब में भी फेल हो चुका हूँ, बिकॉज मुझे जॉब में पिंक स्लिप मिला था. जो पूना से मैं बॉम्बे गया था जब मैंने मेरा फर्स्ट जॉब ज्वाइन किया, इट वॉज अ वेरी गुड रेप्यूटेड इनडायरेक्ट टैक्स फर्म. जब मैंने लगभग 8-10 महीने 1 साल काम किया, उन्होंने मुझे पिंक स्लिप दे दिया, कहा कि प्रीतम यू डोंट नो आई ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स, यू डोंट अंडरस्टैंड इनडायरेक्ट टैक्स, एंड व्हिच वाज अ रियलिटी. तो वो गलत नहीं थे, उन्होंने एकदम परफेक्टली पॉइंट आउट किया. जैसे एग्जामिनर ने पॉइंट आउट किया था प्रीतम तुझे इनडायरेक्ट टैक्स नहीं आता है, वैसे उन्होंने प्रैक्टिकली पॉइंट आउट किया प्रीतम तुझे प्रैक्टिकली इनडायरेक्ट टैक्स नहीं आता है करके. बिकॉज आई यूज्ड टू मेक मिस्टेक. उनके कुछ एक्सपेक्टेशंस थे मुझसे, मैं जो फुलफिल नहीं कर पा रहा था, बट आई वाज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड हाउ टू फुलफिल दोज एक्सपेक्टेशंस. देन वो जॉब छोड़ के जब मैंने जो मेरे मेंटोर है सीए सुनील घाबावाला सर, उनके पास मैंने 1 साल 1.25 साल काम किया. वहां पर मुझे अनबिलीवेबल लेवल का लर्निंग मिला, मुझे बहुत जबरदस्त ट्रेनिंग मिला, मुझे वहां पर सर का गाइडेंस मिला, मेंटरशिप मिला. एंड देन आई रियलाइज अच्छा एक इनडायरेक्ट टैक्स प्रोफेशनल या चार्टर्ड अकाउंटेंट इस तरह का होता है, उनका ये स्टेचर होता है, उनका ये लेवल होता है. बिकॉज सुनील सर जो थे वो बहुत बड़े ऑथर है, बहुत बड़े स्पीकर है, थ्रू आउट इंडिया लेक्चर लेते हैं. काफी उनका आई वुड से फैन फॉलोइंग है पर से, वेरी रेप्यूटेड प्रोफेशनल है बॉम्बे में. एसबीजी एंड को करके उनका सीए फर्म है. तो सर के पास जब मैंने काम किया तो मुझे पता चला अच्छा इस तरह से प्रोफेशनल होता है. देन आई स्टार्टेड टू फॉलो हिम मोर, स्टार्टेड टू अंडरस्टैंड हाउ opinion should be given, how a reply to notice should be given, how you should talk to your client, how should you deliver a lecture, how should you write a particular article, बराबर है, how should you think. तो ये बहुत जबरदस्त मुझे सर से सीखने को मिला. एंड बिकॉज ऑफ हिज मेंटरशिप गाइडेंस ओनली आई थिंक वेरेवर आई एम टुडे, इट्स मोस्ट ऑफ द क्रेडिट गोज टू हिम. बिकॉज लाइफ में मुझे एक लगता है कि हम एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट बहुत बार सोचते हैं कि हमको बेस्ट फर्म में काम करना है. तो मैं कहूंगा बेस्ट फर्म में मत काम करो, बेस्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास काम करो. बेस्ट फर्म में मत आर्टिकलशिप करो,
बेस्ट जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है उसके अंडर आर्टिकलशिप करो, बिकॉज ही विल बिकम योर मेंटोर इवेंचुअली। और अगर आपके पास राइट मेंटोर है तो आप बेस्ट प्रोफेशनल बनने ही वाले हो। मेरा 16 साल का तो यही सार है लाइफ का। बिकॉज मैं हर बार ये भी कहता हूं कि अगर आपको तेंदुलकर बनना है ना, तो यू नीड टू फाइंड योर ओन आचरेकर, बिकॉज हर कोई तेंदुलकर नहीं बन पाया है। इट्स अ रियलिटी, बराबर है। तेंदुलकर जी ने आचरेकर जी को ढूंढा एंड ही बिकम तेंदुलकर पर से। तो मुझे लगता है कि अगर इफ यू ऑल टू बिकम तेंदुलकर, अगर आपकी इतने एस्पिरेशन हाई है प्रोफेशनली, अगर आपको कुछ जबरदस्त बनना है, देन फाइंड द बेस्ट प्रोफेशनल इन दैट पर्टिकुलर एरिया। तो टैक्स में है तो टैक्स का बेस्ट प्रोफेशनल ढूंढो, इंडिविजुअल ढूंढो, नॉट फर्म। बुटीक फर्म रह सकता है, फाइंड दैट पर्टिकुलर बुटीक फर्म एंड वर्क विद दैट बेस्ट गाय। अगर आपको ऑडिट में काम करना है तो सिमिलरली प्रोसेस फॉलो करो। फाइनेंस में करना है, फेमा में करना है, कोई भी फील्ड में जो भी बेस्ट स्पीकर रहेगा, ऑथर रहेगा, गो एंड वर्क विद हिम फॉर एटलीस्ट 1 to 2 years minimum. Then the kind of learning which you are going to have, you can apply that learning for next 2 to 3 decades of your life. When you are working with these kind of professionals, people, you are not going to get best of the pay, because if you compare that with the big fours of the world and all, the pay or packages may not be great, but the kind of learning which you are going to have, that would be unbelievable, because that learning you can apply for next 2 to 3 decades of your life. And that's where I think you need to invest your time, first 2 to 3 years of your life, very crucially, very critically. People are right now who are all the chartered accountants or aspirants of CA journey, they are thinking of investing money in stock market, but they don't think of investing their time in the best articleship experience. They want to get the best return immediately. 15,000 articleship का stipend मिल रहा है, immediately go for the biggest firm who is going to give me the money. But I think that should not be the determining criteria. The determining criteria has to be, where am I going to get the best experience, and that too, where can I work with the best chartered accountant? Because if you join the big firm, maybe you might get work exposure of working with the executive in that particular firm. Because see, in a big firm, there is a partner, there is a director, there is an associate director, there is a senior manager, there is a manager, there is an AM, there is a executive. Then there are article year 3, article जो second year में है, and then article first year में, and then fresher आता है। तो इतने हायरार्की में आप टॉप मोस्ट पर्सन के साथ किस तरह से काम करने वाले हैं? टॉप मोस्ट पर्सन को इतना अपॉर्चुनिटी या टाइम मिलेगा क्या टू गाइड यू? बराबर है। सो ट्राई टू फाइंड अ प्लेस जहां पर आपको बेस्ट अपॉर्चुनिटीज मिले लर्निंग का, दैट वे। तो मैं कहूंगा कि मेंटरशिप का बहुत रोल प्ले होता है आपके जर्नी में। एंड जैसे मुझे पिंक स्लिप मिला, उसने भी मुझे बहुत सिखाया। तो एग्जाम में फेल्यूर, जॉब में फेल्यूर, तो ये जो 2 बिगेस्ट फेल्यूर थे, वही मेरे एक सक्सेसफुल होने के या पार्ट ऑफ सक्सेस के मैं कहूंगा कि बहुत बड़े भागीदार है। That way. Summarize it all, the first 2 to 3 years of your career should be totally invested in your learning, and should not be from the economic point of view or how much salary you are getting. So this is the key learning that we are having today. And let's move to the next question. So when did you start? When you started with your practice, surely it would not have been a smooth experience. There might be some initial challenges that you would have faced. So we would like to know more about it, that how your journey as a practitioner started, and how did it went on? Acha. Harshada, when I worked with even a big 4 consulting firm before I started my practice in 2012. I started as a one-man show, and now we are around 20 plus people in Pune. So it's growing. So when I started my journey, I think the biggest credit for starting a practice I would give to, again, indirect tax as a field. Because what happens when you are working in indirect tax from 2005-6 to 2012, in 6 years, I got to know so many industries. And as I mentioned, indirect tax is a transaction level tax. So when somebody wants to get into a land deal, correct, joint development agreement, somebody wants to set up a factory, somebody wants to initiate a new business, the first thing he is always concerned about is indirect taxes. So you want to understand how these indirect taxes are going to play out or pan out. Because when you look at a turnover of a company of say 1,000 crore rupees, let us say, on the output side, they are going to pay 18%, that is 180 crore. On the purchase side, if I am assuming they are having purchase of say 800 crore, 600 crore for that matter, so 120 crore का GST purchase पे है, तो 180 करोड़ का आउटपुट पे, परचेस पे 120, 300 करोड़ का किटी होता है 1000 करोड़ पे।
indirect tax का. So that plays a big significant role. So every CFO, CEO, they are more than concerned about understanding the indirect taxes implication. And that's where, when as a professional, when I was working in that field, we got exposed to so many new business models, so many new business transactions. And then I started to think, okay, there is so much demand from the people who want to do something new in their, like say, journey. They want to set up a factory. They want to maybe start a new startup. And there's a huge demand, and people are not having right answers to these kind of questions. They can't approach Big Four all the time. They can't go to big firms all the time. So I thought, let us have a boutique firm who is only working in the field of indirect taxes. And that's how our journey started. And additionally, I would say, as a tax professional and as a person, we always mention that you should not be master of a particular topic. You should be master of learning. If you are a master of learning, then naturally, I can share with comparing my journey also. From direct tax, I made a switch to indirect tax. From service tax, we made a switch to GST. From GST, subsequently, we made switch to Gulf VAT, because not only Indian GST हमने implement किया है, we were also part of that Gulf VAT journey in Dubai. So we implemented VAT in UAE. So I was along with our team member. We were in Dubai for 6 to 9 months. We were in Kuwait for a couple of days. We were in Oman for 3 months. We were in Bahrain for 3 months. So we implemented VAT in even those countries. So we not only implemented VAT or GST in India, but we did that internationally. So this is possible if you are a master learner. So rather than becoming master of a topic, you always need to think that, can I become a master learner? It's a process. It is not that out of a world. It's not rocket science. You just need to be keen reader, keen observer, and keen implementer. If you are these three things, then you are done. So that way. So in the throughout journey of our practice, I would say we always tried our level best to teach our student this thing only, that you need to be a master learner. And indirect tax एक ऐसा फील्ड है ना, आपको एवरी डे केस लॉज, नोटिफिकेशन, अमेंडमेंट, चेंजेस फ्रस्ट्रेट कर देगा, आपको फ्रस्ट्रेट कर देगा, इतने सारे चेंजेस है. लेकिन अगर आप उसका दूसरा साइड देखोगे कि इट इज फोर्सिंग यू टू रीड, इट इज फोर्सिंग यू टू लर्न every single day, every single moment, then you would be able to take the best out of it. You will be able to make the best out of it. बराबर. And that's where I think as a professional we have to decide कि अगर कोई फील्ड बहुत चैलेंजिंग है, that means opportunities बहुत ज्यादा रहेंगे उसमें. So I always recommend the student or people to choose a particular field for doing articleship. And obviously my first answer will always be indirect taxes or GST for that matter. तो जहां पर भी आप दिल्ली में है, बॉम्बे में है, पूना में, जिधर भी आप जो भी सिटी से करना चाहते हैं, गो फॉर इनडायरेक्ट टैक्स. लेकिन ऐसे फर्म में करिएगा जहां पर आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मिले, यानी कि लीगल साइड और रिटर्न्स यानी कंप्लायंसेस. बहुत सारे फर्म्स होते हैं जिनका सिर्फ कंप्लायंसेस का काम होता है. डोंट गो फॉर दैट काइंड ऑफ अ फर्म. सो इट्स अमेजिंग जर्नी आई वुड से एज अ प्रैक्टिशनर. 8 साल में हमने नॉट ओनली वी वर्क इन इंडिया बट ऑल्सो आउट ऑफ इंडिया, ऑल्सो इन गल्फ कंट्रीज. That is very amazing for an Indian chartered accountant to go in a Gulf and implement Gulf VAT. So apart from your professional journey, I also know that you have written several books on GST and indirect taxes. So please tell us something about your journey as an author. अच्छा, तो अगेन यहाँ पर इनडायरेक्ट टैक्स में जब भी कोई टीम मेंबर या किसी में बात करता हूँ स्टूडेंट से, मैं उनको कहता हूँ कि जब आप टैक्स फील्ड चूज करते हो ना, तो यू डोंट हैव अ चॉइस बट टू स्टार्ट राइटिंग ईमेल्स, बट टू गिव ओपिनियंस, बट टू रिप्लाई टू नोटिसेस. एंड यहाँ पर हर जगह ड्राफ्टिंग का स्किल आपका बेटर होने ही वाला है. एंड वर्ल्ड ओवर अगर आप देखोगे, 2 टाइप के प्रोफेशनल्स को या पर्संस को बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट है. एक है ऑथर, दूसरा है स्पीकर. और इनडायरेक्ट टैक्स ऐसा फील्ड है जहां पर आपको ऑथर बनने का भी अपॉर्चुनिटी है और आपको स्पीकर बनने का भी अपॉर्चुनिटी, बिकॉज इतने सारे चेंजेस है. आप शायद बुक ना लिख पाए, लेकिन आप आर्टिकल तो लिख ही सकते हो. आप शायद कोई बजट के ऊपर लिख ना पाए, लेकिन न्यूमरस जजमेंट आते तो उसके ऊपर आप लिख ही सकते हो. तो नेचुरली स्लोली अगर आप इनडायरेक्ट टैक्स पे काम करते हो तो यू विल बिकम अ बेटर ऑथर. एंड द टाइम यू स्टार्ट टू राइट समथिंग, आपके माइंड में काफी सारे जो आइडियाज है उसको एक राइट शेप आने लगता है. देन नेचुरली यू कैन बिकम अ बेटर स्पीकर ऑल्सो, बिकॉज इनडायरेक्ट टैक्स में मुझे तो इतना ज्यादा भर की अपॉर्चुनिटी दिया है स्पीकिंग एंगेजमेंट, तो नेचुरली यू डोंट हैव चॉइस बट टू बिकम बेटर इन दैट जर्नी. तो यस, आई वुड ऑलवेज रिकमेंड दैट यू शुड गो फॉर इनडायरेक्ट टैक्स एंड चूज इट एज अ फील्ड. यहाँ पर आपको ये 2 चीजें जो है, स्पीकर एंड ऑथर बनने का आपको मिलेगा सॉर्ट ऑफ.
Yes. So my next question is actually of bit. Actually, it's from a student point of view that many students have this notion in their mind while doing articleship or while going for a job that should I join a mid-sized firm? Should I go for a big four? So you have worked in a mid-sized firm. You have also worked in a big four. So how working on these two different in these two different types of firms have helped your career? तो मैं कहूंगा कि जैसा आपने एकदम राइटली हर्षदा यू पॉइंटेड आउट, या तो बिग फोर या तो मिड साइज फर्म। बिग फोर में मैं जाऊंगा या तो मिड साइज फर्म में मैं जाऊंगा, तो वहां पर मुझे सब कुछ सीखने मिलेगा। तो यहां पर मैं कहूंगा कि एक इन बिटवीन थर्ड डोर भी है। लोग दो ही डोर सोचते हैं, लेकिन देयर इज अ थर्ड डोर इन बिटवीन, दैट इज अ बुटीक स्पेशलाइज्ड फर्म, जहां पर आप एक पर्टिकुलर वर्टिकल के मास्टर आप बन सकते हो। जैसा मैं आपको, जैसा हमारा खुद का एग्जांपल मैं देता हूं, तो पहले हम पॉजिटिव लिस्ट रेजिम में काम करते थे। सर्विस टैक्स का पहले पॉजिटिव लिस्ट रेजिम था, वहां से हमने स्विच किया निगेटिव लिस्ट रेजिम ऑफ सर्विस टैक्स में, वहां से हमने स्विच किया जीएसटी में, वहां से यूआई वैट वगैरह में। तो ये उसी वजह से पॉसिबल हुआ बिकॉज वी वर नोइंग एंड टू एंड ऑफ दैट पर्टिकुलर फील्ड। जो हॉरिजॉन्टल लर्निंग होता है ना, मुझे सब आता है करके, मुझे इनकम टैक्स आता है, ऑडिट आता है, अकाउंटिंग आता है, स्टैट्यूटरी ऑडिट आता है, लॉ आता है, एवरीथिंग, देन यू आर हैविंग दैट हॉरिजॉन्टल लिंक। करेक्ट। हॉरिजॉन्टल लर्निंग में प्रॉब्लम क्या हो जाता है, आप किसी के भी मास्टर नहीं हो, एंड अगर आप मास्टर नहीं हो तो स्विचिंग करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। लेकिन अगर आप एक टॉपिक के मास्टर बन जाते हो, जैसा अभिमन्यु का है ना, आप ही न्यू हाउ टू गेट इन बट नॉट गेट आउट, बट इफ यू नो हाउ टू गेट इन एंड हाउ टू गेट आउट, तो आप स्विच कर पाओगे। एंड जो फ्यूचर है, फ्यूचर इज गोइंग टू बी अबाउट स्विचिंग। आपके लाइफ में आप न्यूमरस टाइम्स आपका करियर स्विच करने वाले हो, बिकॉज आप, मेरे डैड अगर देखोगे तो एक ही इसमें था, फ्रॉम द डे ही ज्वाइन पुलिस डिपार्टमेंट टिल हिज डेथ ही वाज इन पुलिस डिपार्टमेंट ओनली। तो काफी सारे लोग ऐसे ही रहेंगे जो मेरे डैड के जनरेशन के थे, एक ही जॉब ज्वाइन किया, उसी में एंटायर उन्होंने करियर कर लिया, बराबर है। लेकिन जब मेरा जनरेशन आया तो लोगों ने 10-10 साल 5 साल लगभग काम करना चालू किया। हो सकता है आपके जनरेशन में नॉट ओनली जॉब स्विच करेंगे, आपको फील्ड स्विच करना पड़ेगा, सिटी स्विच करना पड़ेगा, बराबर है। इवन आप आज डायरेक्ट टैक्स में हो, कल इनडायरेक्ट टैक्स में जा सकते हो, वाइस वर्सा। आज आप शायद जॉब कर रहे हो, कल आप यूट्यूबर बन सकते हो। तो ये पॉसिबिलिटीज बहुत ज्यादा है, लर्निंग का अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा है, लेकिन उसके लिए स्विचिंग का माइंडसेट आना जरूरी है, बराबर है। तो ये स्विचिंग पॉसिबल मुझे लगता है, एक फील्ड में अगर आप स्पेशलाइज बन जाओगे तो कर पाओगे, नहीं तो हर चीज का आधा अधूरा करोगे तो नहीं पॉसिबल है। लेकिन एक चीज में अगर आप वर्टिकली मास्टर बन जाओगे, एंड टू एंड अगर आपका आएगा, तो नेक्स्ट चीज में भी आप मास्टर बन सकते हो। पॉसिबल है, स्विचिंग पॉसिबल है, लेकिन उसके लिए आपको अभिमन्यु के जैसा नहीं, आपको एंड टू एंड आना चाहिए। So this is basically, this is so basically, don't go for a big four or this I would say जनरल फर्म जहां सब कुछ मिलता है। गो फॉर अ बुटीक फर्म जहां पर एक फील्ड में आपको एंड टू एंड मिलेगा, 3 साल में, 2.5 साल में, जो भी रहेगा। So basically, due to abundance of opportunities in these days, people get stuck with this question. But you have aptly summarized it and given a perfect solution for that. I hope this would be very helpful for our target audience. Apart from this professional journey, I also note that, or anyone who would have seen your LinkedIn profile, that you provide a very much articleship related content, that how the articleship should be chosen and in which firm you should go for. And you always emphasize, like in this discussion also, you have always emphasized the importance of having a mentor. So please tell us more about the articleship related content and you publish on LinkedIn profile. अच्छा, हाँ अर्षदा, तो मुझे क्या लगा, जब कपल ऑफ माय कलीग्स आर देयर, जैसा सीए साहिल थरानी इज वर्किंग विद अस, सो जब हम डिस्कस कर रहे थे, व्हाट वी रियलाइज कि कहीं ना कहीं आर्टिकल्स को गाइड करने वाला कोई पर्सन है नहीं, अप्रोप्रिएट गाइडेंस देने वाला। एंड देयर आर ह्यूज आई वुड से लैकुनास देयर, बिकॉज एक राइट वे से गाइडेंस देने वाला कोई है नहीं। काफी सारे स्टूडेंट है जो अभी गाइड करने लग गए हैं, सो दे आर एक्सपीरियंसिंग something and they are immediately putting it out. So be it LinkedIn, Twitter, they have become platform to vent our anger out. और काफी सारे लोग जो राइट या इनकरेक्ट, मैं कहूंगा कोट या कुछ मेंशन करते, इमीडिएटली उसको 150, 200, 500, आई डोंट नो, XYZ लाइक्स मिल जाते हैं।
एंड देन लोगों को लगता है अच्छा यही बराबर रास्ता है. सो देन वी थॉट कि नो यार, दिस इज नॉट द राइट वे. माय 2 decades of approximately experience say that this is a right way sort of. So then I thought Sahil and I discussed and we said कि यार let's start sharing something with the student in the right manner. So presentations was one of the content we thought we are good at. तो हमने काफी सारे आर्टिकलशिप गाइडेंस के प्रेजेंटेशन या पीपीटी बनाए एंड वो फ्रीली अवेलेबल कर दिए. अगर आप हमारे लिंक्डइन प्रोफाइल पे जाएंगे यू विल बी एबल टू गेट इट इन द डॉक्यूमेंट सेक्शंस. सिमिलरली एवरी डे आई थिंक अबाउट कि आर्टिकल्स का भी क्या बेस्ट रहेगा सॉर्ट ऑफ. तो आई थिंक अबाउट समथिंग एंड देन कुछ कोट वगैरह रहेगा तो आई विल शेयर दैट कोट व्हाट आई एम फीलिंग अबाउट देम सॉर्ट ऑफ. जैसे एक जो चीजें मुझे लग रही थी कि पीपल आर मोस्टली बिजी ऑन लिंक्डइन एंड फेसबुक, तो मैंने एक बार लिखा था कि instead of Facebook you should face the book, instead of LinkedIn you should link within. तो दिस काइंड ऑफ थिंग्स आई स्टार्टेड डूइंग. काफी सारे स्टूडेंट ने वगैरह भी मुझे चार्टर्ड अकाउंटेंट से भी फीडबैक दिया कि अच्छा सर ये बहुत अच्छी बात है, आप हमको थोड़ा गाइडेंस दीजिएगा. एंड दैट्स वेयर दैट जर्नी स्टार्टेड एंड वी कंटिन्यू टू फॉलो दैट पाथ. You put it in a very relatable manner, like the memes, the trending memes which are going on, and you put the content related to it, so it becomes very interesting to read all of it. So I would definitely recommend everyone to please go and search for those documents, and they are very very much relatable. Thank. And I would say the credit for that goes to our team member, so be it CA Sahil Tarani, be it Taranpreet जो हमारे साथ काम करते हैं, then be it सजना, so numerous team members है, दीपिका मैडम है, तो जो हर कोई अपना अपना कुछ ना कुछ शेयर करता है and then we try to share that in a best meme possible manner, ऐसा sort of. Yes. Definitely. So I think we are approaching the end of our session, and listening to your experience overall has been a very enriching experience for me and definitely for the target audience as well. So as you know, our target audience is CA students and the recently qualified chartered accountant. So what key message, to summarize this session, what a key message would you like to give to them? अच्छा, तो थैंक्स हर्षदा. First, let me thank you for this wonderful opportunity and also Team Vision. To summarize, मैं कहूँगा कि बहुत बार हम CA जर्नी करते हैं, आर्टिकलशिप के प्लेस में आप ज्वाइन करते हो, हर बार ना हमारे पास माइंड में एक्सपेक्टेशंस रहते हैं. तो मैं कहता हूँ कि यार स्टार्ट विद जीरो और निगेटिव एक्सपेक्टेशंस. पहली बात तो लाइफ आपको हर बार लगता है लाइफ इज फेयर, तो मैं कहता हूँ कि अज्यूम लाइफ इज अनफेयर करके. अगर कुछ इक्का दुक्का अगर अच्छी चीजें हो रही है तो बी हैप्पी अबाउट इट, करेक्ट, वो बोनस है. तो बहुत बार लाइफ इज फेयर, इट इज नॉट दैट वे. आपको लगता है आपका सीनियर फेयर है, इट इज नॉट दैट वे. आपको लगता है इंस्टीट्यूट फेयर, इट इज नॉट दैट वे. सो नोबडी इज फेयर टू सम एक्सटेंट, बराबर, दे आर ऑलवेज अनफेयर. बट ये एक्सेप्ट करके चलो. आपको लगेगा कि एग्जाम पोस्टपोन करना चाहिए, ऐसी है ना, नहीं करना चाहिए, कर दिया तो प्रॉब्लम, नहीं किया तो भी प्रॉब्लम. तो यहाँ पर अजम्पशन मत करो कि आप जैसा सोचने वाले हो होने वाला है करके. स्टार्ट विद जीरो एक्सपेक्टेशंस एंड देन गिव योर 110%. बिकॉज एक बार आप दोगे, हो सकता है कि फेल हो सकते हो, सेकंड टाइम दोगे फेल हो सकते हो, थर्ड टाइम इम्पॉसिबल है. तो मुझे यही जो मेरे माइंड में रहता था कि अरे नो एक्सपेक्टेशन, बट व्हेन इट कम्स टू डेडिकेशन, अपना 110% डेडिकेशन देने का. Zero expectation, 110% dedication. That's how you should approach life. That's how you should approach exams. That's how you should approach your even professional journey. Because job में भी जब चले जाते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट, उनको लगता है कि अरे मुझे जो भी ऑर्गेनाइजेशन में यहाँ पर मुझे रिकॉग्नाइज ही नहीं करते, क्रेडिट तो कोई और ही लेके जाता है, ये होता है. अरे बट एक बार ट्राई करो, 2 बार करो, 3 बार करो, 10 बार करो. यस, मीन्स कंटिन्यू टू डू इट. ऐसा इम्पॉसिबल है, यूनिवर्स का जो बेसिक प्रिंसिपल है ना, इम्पॉसिबल है कि आप इतने बार करोगे तो यूनिवर्स आपको बेनिफिट ऑफ डाउट नहीं देगा करके, बराबर है. लोग तो 2-3 अटेम्प्ट देके फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं. मैं जो जनरेशन को बिलोंग करता हूँ, 14 साल लगे हैं लोगों को चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने में, लेकिन फिर भी उन्होंने गिव अप नहीं किया एंड वो बने चार्टर्ड अकाउंटेंट. उनका छोटा भाई था, मुझे आई नो वन फ्रेंड, उसके छोटे भाई को 10 साल का लड़का हुआ तो वो चार्टर्ड अकाउंटेंट बना. 10 साल का हो गया तो उसका लड़का, तो शादी भी हो गई छोटे भाई की. तो उस जनरेशन को मैं बिलोंग करता हूँ. मुझे लगता है कि आज के जनरेशन में नहीं, क्या इमीडिएट इंस्टेंट चाहिए हर चीज. तो थोड़ा लॉन्ग टर्म व्यू रखो. डोंट अज्यूम दैट वर्ल्ड इज फेयर, करेक्ट, एंड कीप ऑन डूइंग, just keep on giving your 110%, and
do that consistently, someday or other, the world will reward you. Yes, definitely. So basically, we should not give up. We should focus on our learnings. We should have a positive approach towards CA journey and overall our career. So thank you so much, Preetham sir, for this wonderful conversation. You have been inspiring for many of the people, and you will be inspiring for our target audience as well. I'm pretty sure of that. Thank you for taking out time for this interview, and we are really grateful to have you here. Thank you. Thanks, Harshita. Thanks. Yeah. Bye, sir. Bye.